Welcome back, students. Now we will talk about how the animal are the sources of food. Means how can we refer different animal as a source of food. The animals such as cow, buffalo, goat, camel, all are referred as the animals which gives us milk, right? Even the animals from both like male, then sheep, which is also the source of meat, mutton for us. Not only the milk, but the product which are prepared, made, manufactured from the milk, that are also come from the animals mentioned over here. ठीक है. Apart from this, the food. For example, eggs, then meat, then flesh. Okay? Yeah, what I told you just now. Mutton. All these are also comes from the animal. See, egg come from the hen. Hen is a bird, but the birds are also categorized under the group of animals. We do are animals. You may know that. Now, see, different thing. For example, egg जो है ये egg is a source. ठीक है, इसकी हम अलग अलग डिशेस बना सकते हैं. एग आप सिंपली रॉ भी खा सकते हो, कोई खाते हैं. ठीक है, कोई बॉईल करके खाता है, कोई ऑमलेट बना के खाता है, राइट? कोई अंडा करी बना के खाता है, एग करी बना के खाता है. सो दैट आइटम इज सेम बट द डिशेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट वन फूड आइटम आर डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, आप जो फ्लैश है, जो मीट है, उसको भी आप सिंपली बॉईल करके भी खा सकते हो, कुक करके खा सकते हो, उसकी करी बना के भी खा सकते हो. मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन द चॉइसेस एज आई टोल्ड यू, और वैरायटी विच यू वांट टू प्रेफर. क्लियर? विच यू वांट टू प्रेफर टू ईट. Like that, other animals, aquatic animals, for example, fishes, okay, fishes, then prawn, then crab. These are also the animals which serve as the food. अभी देखो, ये जो फिश है, मैंने सिंपली यहाँ पे फिश लिखा हुआ है, लेकिन फिश जो है वो अलग अलग टाइप की डिशेस में हम कन्वर्ट करके खा सकते हैं. कोई सिंपल फिश फ्राई करके खाता है, कोई फिश करी करके खाता है, कोई सिंपली उसको रोस्ट ड्राई करने के बाद रोस्ट करके भी खाता है. सो इट डिपेंड अपॉन द पर्सन एंड देयर चॉइस और द वैरायटी विच यू प्रेफर. बट ऑल टुगेदर in these way animals are served as the source of food, right? इसके बाद एक very important और छोटा सा टॉपिक है एनिमल्स के बारे में, that honey. okay, honey हमें कहां से मिलती है? honey bee से. honey bees. Now these bees you may have seen that are always wandering here and there on the flowers. They are sitting on the flowers. Why? Because they are collecting the nectars from the flowers and store at their home. That is called as beehive. उसको हम क्या बोलते हैं? beehive. ये जो beehives होते हैं, that may be, मतलब आपने देखे होंगे कि that may be remain hang to the big branches of the trees, या फिर sometime on the side of the walls of big tall buildings. मोस्टली जो पुरानी बिल्डिंग्स होते हैं ना, या फिर जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं है, ऐसी जगह पे that bees are building their house, their home, that is called as beehive. And we are removing that beehive from that place and extracting the honey from that. Honey is very good
वेरी गुड आउटस्टैंडिंग सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, और खाने में मीठा लगता है, वो तो हर कोई उसको खा सकता है. सो अंडरस्टैंड, सो दिस आर ऑल टुगेदर ओवरऑल द प्रोडक्ट्स और द थिंग्स, फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. क्लियर? Students, I want to tell you one thing, that when you are listening to me, you may listen the voices, different voices like horns of the vehicles, cry of the kids. But obvious we are civilized people, तो ये सारी आवाज तो आती रहती है कभी कभी. So you avoid that, completely avoid that and focus on what you want to listen, that is me. Okay? Now, चलो एनिमल्स का तो हो गया. अभी एनिमल क्या खाते हैं? एनिमल क्या खाते हैं? क्या सभी एनिमल सेम चीज खाते हैं? नहीं. एनिमल्स आर ईटिंग डिफरेंट फूड. कुछ कुछ एनिमल्स जो है, जैसे अगर गोट की बात करें, शिप की बात करें, काउ की बात करें, बफेलो की बात करें, तो वो क्या खाते हैं? ग्रीन ग्रास खाते हैं, फॉडर खाते हैं, राइट. अगर हम हेन की बात करें तो इट ईट्स स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स, इट ईट्स द ग्रेन्स, राइट. कुछ एनिमल्स जो है, बड़े एनिमल जैसे टाइगर, लायन वगैरह, वो क्या खाते हैं? वो छोटे एनिमल्स को खाते हैं, राइट. बट अगर आप ध्यान से सोचोगे, जो भी एनिमल्स खाते हैं, चाहे वो प्लांट खा रहे हो, चाहे वो छोटे एनिमल्स को खा रहे हो, चाहे वो इंसेक्ट को खा रहे हो, वो जो चीजें हैं वो सब किस पे डिपेंड होती है? प्लांट्स पे डिपेंड होती है. किस पे डिपेंड होती है? प्लांट्स पे. हर एक चीज, सपोज टाइगर ने डियर को मारा, राइट. तो टाइगर का क्या खाना हो गया? डियर. बट ये डियर क्या खा रहा था? प्लांट. ओके, कम बैक. सपोज हेन ने ग्रेन्स खाए, ग्रेन्स जो हम डालते हैं उसको खाने के लिए, ये ग्रेन्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं. फिर से एक एग्जाम्पल, हेन्स कभी कभी वो कैटरपिलर लार्वा इंसेक्ट पे खा जाते हैं कभी कभी, तो वो किस पे फीड करते हैं? वो क्या खाते हैं? वो भी लीव्स खाते हैं, या फिर छोटे छोटे सीड्स होते हैं प्लांट्स के, फ्रूट्स, वो खाते हैं. मीन्स अल्टीमेटली वो किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं. क्लियर? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट्स. किस पे डिपेंड है? प्लांट्स. इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स. क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स. एंड इस पूरी दुनिया में, इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में, ये प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, बट हमारा खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, चाहे वो आटा हो, चाहे वो कोई वेजिटेबल हो, चाहे वो ऑयल हो, घी हो, जो भी हो, वो कहाँ से आता है? प्लांट से ही आता है ना. सो वी आर डायरेक्टली नॉट मेकिंग आवर फूड, अंडरस्टैंड. इनडायरेक्टली वी आर मेकिंग. बट प्लांट के बारे में ऐसा नहीं है. प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड with the help of chlorophyll present in the leaves, green colorful pigment, the sunlight and carbon dioxide present in the atmosphere. ये जो process है, the process in which plant produce their own food with the help of sunlight, in presence of sunlight, with the help of carbon dioxide from the atmosphere and the chlorophyll pigment, is known as फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं इसे? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसाइज व्हाट? फूड. फूड. दैट्स व्हाई plants are called as producers, because they are producing food for whole living world. पूरी दुनिया प्लांट्स पे डिपेंड है. सोचो प्लांट्स ही नहीं है, क्या खाएंगे हम? सिर्फ सोचो कि प्लांट नहीं है तो क्या खाएंगे? आप सोचो कि हम मिल्क पिएंगे, हम एग्स खाएंगे, हम फ्लैश खाएंगे, राइट? ये भी कब तक खाएंगे? क्योंकि ये भी तो प्लांट पे जीते हैं, isn't it? They are also living because they are eating plants and plant products. प्लांट्स ही नहीं रहे तो ये भी नहीं जिंदा रहेंगे ना, तो हम क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं खा सकते. Then we may die. So हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे.
सो वी आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स, खाने वाले हम. व्हाट वी आर रेफर एज, ऑल आर रेफर एज कंज्यूमर्स. मीन्स लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स को छोड़ के जितने भी है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, अलगी, सब, अलगी नहीं, सब कौन है, कंज्यूमर्स है. अभी ये जो कंज्यूमर्स है ये भी अलग अलग टाइप में है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट. राइट, हम क्या खाते हैं उसके बेसिस पे हमें अलग 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 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. विच आर दीज कैटेगरीज? दीज कैटेगरीज आर फर्स्ट हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज herbivorous animals. Why? Because herb means indicates the plant. ये क्या इंडिकेट करता है, प्लांट, ओनली प्लांट और प्लांट parts, right? The animal which feed on only plant or its plant parts are called as herbivore or herbivorous animal, right? Which are these animals? These animals are cow, buffalo, goat, camel, elephant, giraffe, deer. These are called as herbivores और herbivorous animals, क्योंकि वो सिर्फ वेजिटेरियन ही है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट पार्ट्स ही खाते हैं. क्लियर? द सेकेंड कैटेगरी और सेकेंड ग्रुप इज कार्निवोर्स. Carnivores are also called as carnivorous animals. Why? Because they eat the flesh or meat of animals. ये जो एनिमल्स है हर्बीवोर्स, इनको खाने वाले कौन होते हैं, कार्निवोर्स. कौन होते हैं, कार्निवोर्स. द एनिमल विच feed upon the small animals or other animal are called as the carnivores. ऐसे कौन से है फिर, टाइगर है, लायन है, बियर है, then fishes are also there, frog is also there. These are called as carnivores or carnivorous animals. And the last omnivores means both, मतलब जो कार्निवोर्स भी है और हर्बीवोर्स भी है. बोथ हर्बी एंड कार्नी मीन्स व्हाट, जो प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट पार्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, जैसे कि हम वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, राइट, ऐसा कहते हैं. बट साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, do not use this word in your exam or in your notebook. Vegetarian, non-vegetarian एक general common word है. When we are reading, writing, talking about science, we must use scientific word. We must use scientific word only. So omnivores is the group of animal which feed upon the plants as well as animals. Okay, for example, cat है, डॉग है, क्रो है, हैन है, हम है, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. राइट, मीन्स वी ईट वेजिटेबल्स as well as we eat fish also, we eat flesh also, chicken also, mutton also. So दोनों टाइप का खाना हम खाते हैं. Understood? Now in this session what we have discussed, just have a small recap. We have discussed about how animals are served as a food. Later वो एनिमल खुद क्या खाते हैं वो हमने डिस्कस किया. फिर ये एनिमल जिसको खाते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स कौन से है, वो हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग द फूड, बाय फोटोसिंथेसिस. क्लियर? एंड दूसरे जो है अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स ऑल आर कंज्यूमर्स. और उनके कितने टाइप है, 3. कौन से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. प्लांट खाने वाले, एनिमल्स खाने वाले और दोनों को खाने वाले. अंडरस्टैंड? इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you have to read the lesson very carefully. You have to write the new words and their meaning.
If some definitions are there, that also you have to write. And take a photo and send to me. If you have any query in this chapter, just let me know in the comment. Clear? Till that time, keep studying, think positive and keep smiling. Thank you.